تھوڑے دیر بعد ہی پانڈیاں دی آواز تھڑم تھڑم. کیوں ختم ہوتا ہے آرام؟ آدم اور حوا کا آرام اور اطمینان میں تھے. وہ جب خدا نے آدم حوا کو بنایا تو بڑے آرام میں تھے. کوئی شور شرابہ, انہیں یقین کرو تھے بے پریشانی نہیں تھی, فیس دی نہیں سی, ٹینشن نہیں سی, کوئی پٹھان دا دار دینا ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پٹھان جنت ہے ہی کوئی نہیں سی. اتنا زیادہ آرام تھا. لیکن کب وہاں پہ آرام ختم ہوا؟ جب گناہ آیا تو یہ اطمینان اور آرام ختم ہو گیا. کیا لکھا ہے؟ گناہ ہمارے ریسٹ کو ختم کر دیتا ہے. اگر آج آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو آج سے گناہ کو ختم کریں, ایلیمینیٹ کریں. گناہ آپ کی زندگی سے جائے گا, آرام آپ کی زندگی میں آئے گا. ہاللیلویا. دیکھیں, ریسٹ اطمینان کا دوسرا نام ہے, اور ریسٹ دوسرے نام کا ایک اور نام ہے شالوم. اور یہ یسوع مسیح کا فیوریٹ ورڈ ہے. بائبل میں یسوع مسیح نے 200 مرتبہ اس لفظ کو یوز کیا. جب یسوع مسیح مرنے کے بعد, جی اٹھنے کے بعد زندہ ہوئے تو شاگردوں کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ شالوم, تمہاری سلامتی ہو. آج سے شالوم کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. شالوم یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. بائبل میں 200 بار خدا نے یسوع مسیح لفظ استعمال کیا. شاگردوں کے سامنے کا شالوم. شالوم کا مطلب تمہاری سلامتی. ایک دوسرے کو کہیں شالوم, ایک دوسرے سے کہیں شالوم. شالوم یسوع مسیح کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے سلامتی. ریسٹ. آج میں آپ کو ریسٹ 4 لفظ بتاؤں گا. REST. بولے REST. کیا مطلب؟ اب ریسٹ کیسے بنا؟ آر پہلا لفظ کیا ہے؟ اونچی بولے کیا ہے؟ آر کا مطلب ہے ریجوائس, اور ریجوائس کا مطلب خوش رہو. کیا؟ اچھا, کئی لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, کہتے رہو انہوں نے کچھ کتاریاں میں کٹو نہیں خوش ہوتے, کچھ کتاریاں ٹکلیں, پتہ ہے نا. کئی ایسے ہوتے ہیں نا, کہتے کٹ رہے ہم لوگ, تالیاں بجاؤ, تالیاں, ہاللیلویا. ریجوائس نہیں آئے گی. ہنسنا شروع کریں. آج سے غصہ ہے, ہنسنا شروع کر دو. ہنس کے دکھائیں گے, ایک دوسرے کی شکل دیکھیں, ہم سے دیکھیں ذرا ایک دوسرے کا. اچھا, آج آگے نا شیشے دیکھ کے لوگ کیسے ہوتا ہے, بہت ہی ہنسی آئی. ہاللیلویا. ذرا زور سے ہنسیں, زور سے ہنسیں. ہنسے, آپ کی اپنی ٹینشن نکل جائے گی. ذرا زور سے. بہترین ایکسرسائز ہے جب غصہ ہنسنا شروع کریں. ریجوائس. اور پولس نے کیا کہا؟ خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. اور کیوں تو انہوں نے بہت سے بات کی, انہیں پتہ ہی نہ نہیں رہنا خوش. انہیں پھر کہتا خوش رہو. باقی 11 مہینے میں بھی آپ سے کہتا ہوں کیا؟ ایک دوسرے کو خوش رہو, بلکہ خوش رہو. متی 6:33 میں کیسے خوش ہم آج ہم پریشان ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے. کمیٹی نکل جائے, سائیکل مل جائے, بیاہ ہو جائے, اچھی نوکری مل جائے. خدا کا کلام کہتا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو, تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں تمہیں, یہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. اچھی نوکری آپ کے پیچھے بھاگیں گی, اچھے ریسورسز آپ کے پیچھے بھاگیں گے, اور خوشی آپ کے مقدر بات. ہاللیلویا. اور پھر بھی 4:4 لکھا خداوند میں ہر وقت. کب؟ کب؟ مجھے بولے کب؟ ہر وقت. یعنی بائبل مقدس میں لکھا ہے ہنسنے کا بھی ایک ٹائم ہے, رونے کا بھی ایک ٹائم ہے, مرنے کا بھی ایک ٹائم ہے, اور زندہ ہونے کا بھی ایک ٹائم ہے, پیدا ہونے کا بھی ایک ٹائم ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں تھیوری چینج ہو گئی, بائبل ہی چینج ہوئی. یہاں پہ اس نے اور زیادہ اس کو کر دیا ہے. اس نے کہا ہر وقت خوش رہو. اور ہر وقت ہم کب خوش رہ سکتے ہیں؟ جب ہم یسوع مسیح میں ہوتے ہیں. ہاللیلویا. پھر کہتا ہوں, اور اگلی بات وہی آگے چھاپتے جانا, نہیں لگ نہیں ہونا, تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے. کوئی پتہ نہیں خداوند 2024 کے 11 مہینوں میں آ جائے, ابھی غصہ لے کے بیٹھے رہیے. غصہ تو کرو مگر. یرمیہ 6:13 میں کہتا ہے اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب لالچی ہیں, اور نبی سے کائن ہر ایک دغاباز ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب خداوند کا نام لے کے لوگ لالچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ورلاتے ہیں. بہت سے خادم بھی لالچی بنے ہوئے ہیں, اور وہ لالچ کلیسیا کے اندر بھر رہے ہیں. یہ دغا بازی ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ خوش رہنا شروع کر دیں, خدا آپ کو خوشیوں کا مالک ہے. ہاللیلویا.
اور यशायाह 61:10 में लिखा है, मैं खुदावंद से बहुत शादमान होगा, मेरी मसरूर होगी, शादमानी मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े बनाए, इसने रास्तबाजी की खिदमत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दूल्हा सेरे से अपने आप को रास्ता करता दुल्हन अपने जेवरों से सिंगार करती है। खुदा कहता है मैं ऐसे तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। हालेलुया। और ज़बूर 103 में खुशी का फार्मूला बताया दाऊद ने, क्या कहता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को, और उसकी किसी भी नेमत को लूट बड़ा पाता है। कोई बात नहीं, लोग तो जरूरी है, को खुश रहे, खुदावंद ने आपके लिए किया है। हालेलुया। वो तेरी, जब वो खुश रहेंगे वो तेरी सारी बदकारी को बख्श देता है और तुझे तमाम बीमारियों से, टेंशन बीमारियां लेकर आती है, इन्फेक्शन लेकर आती है, खुश रहेंगे सारी बदकारियां बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। हालेलुया। तेरी जान को हलाकत से बचाता है और उम्र भर। अच्छा, रिजॉइस का पहला वर्ड क्या है आज से? रिजॉइस का मतलब खुशी। क्या है? कौन कौन चाहता है मेरी जिंदगी में रेस्ट आए? तो फिर पहला वर्ड क्या है? ऊंची सारी बोले, क्या है? रिजॉइस का मतलब खुशी। अपनी जिंदगी को खुशियों से भरे, हंसना सीखे। और दूसरी बात है, क्या है दूसरा वर्ड? ऊंची बोलो। ई का मतलब है एवरी डे, बिला नागा, कभी कभी नहीं, कब? उसकी शुक्रगुजारी करो और बिला नागा उससे क्या करो? दुआ करो। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, बिला नागा, आदम जब बिला नागा खुदा से बातें करता था, इब्लीस की जरूरत नहीं थी उसके सामने आए। आप जब बिला नागा दुआ करेंगे, बीमारियों परेशानी की जरूरत नहीं होगी, आपके सामने खड़ी होगी, खुशी आपके अंदर होगी। हालेलुया। मेक ओनली वन डे प्लान। अच्छा, आज मैं आपको कहता हूँ 11 महीने छोड़ दे, 1 महीने का भी छोड़ दें। कल मंडे का 1 दिन का प्लान बनाए। 24 घंटों में, चलो 12 घंटे तो 9 100 के ना गए, 12 घंटों का प्लान बना सकते हैं आप कि आज मैंने खुश रहना है। आज से ही बना लें, चर्च के बाद से लेकर रात सोने तक प्लान बनाए। आज मनु जो मर्जी कोई कहे, मैं गुस्सा नहीं करना। कोई बना सकता है प्लान? कौन कौन कर सकता है? सिर्फ 12 घंटे। हाँ, बेटी ने हाथ खड़ा किया है, डॉक्टर। तो कहीं कहते नहीं, मैं नहीं गुस्सा चढ़ा, मैं नहीं जानना। हाथ खड़ा करो जरा, कहता आज मैं माफ करांगा, खुश रहांगा। फिर भी नहीं हाथ खड़े हो रहे, मेरी भैन दे रही सारे दे। अच्छा कह रही दोस्तों भी पादरी कह रहे इतने लग लेनी है को आज से बोले चले, आज और कल 2 दिन का प्लान ना रहे कि मैं खुश रहूंगी, मैं खुश रहूंगा। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप करें। आप देखें आपका ब्लड प्रेशर आज ही खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी। शाम में लक पीड़ होती है ना, बंदा होता है, उस तो पहला बिल्कुल ही बंदा आया पूरा ठीक हो जाएगी वो लक पीड़ भी, सिर पीड़ भी ठीक हो जाएगी, तो अड़ियां भी लत्तां पीड़ नहीं होंगी। काम करके स्यापा नहीं, खुश रहे आज। हालेलुया। 1 दिन का। और अपने आप पर ई के एक और मतलब भी है, एवरी डे के बाद एग्जामिन, मैं कहां पर कमजोर हूं, अपने अंदर झांके, आज शीशे के अंदर देखें कि मुझे हंसी क्यों नहीं आती, मैं कितों मेरे अंदर गुस्सा भर गया। आज एग्जामिन करें अपने आप को, आजमाएं अपने आप को, अपने अंदर अपने अना को खत्म करें। इससे ईगो भी है, ईगो जो है ना, मेरा बड़ा तो है कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं है। एक दिन आएगा, ओ रेस्ट इन पीस मिल जाएगा, ये मेरी अना है। आपने आपको एग्जाम करें। पहला तस्वीर 5:16 में लिखा, हर वक्त खुश रहो, बिना नागा। कितने जबरदस्त फार्मूले हैं। और ज़बूर 26:2 में लिखा है, और खुदावंद मुझे जांच और आजमा, मेरे दिलो दिमाग को परख। आज अपने आप को परखें। आज क्यों आपको गुस्सा आता है, क्यों आपके अंदर ये परेशानी है, क्यों दुख आपके अंदर है, आज निकालें इसको बाहर और खुशी को अपने अंदर भरना शुरू कर दें। और खुशी कहीं से नहीं मिलेगी, खुशी यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। क्योंकि तेरी शफकत मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलता रहूंगा। और तीसरा रेस्ट, तीसरा क्या है? क्या है? ऊंची बोले। एस का मतलब है साइलेंस एंड स्टिलनेस, खामोश रहना और ठहरना सीखें। मेरी पहले गाल सुनो, 1 मिनट पहले भाई मेरी निकाल सुनो।
घर भी तू एक मिनट मेरी गल सुनना कि नहीं, बड़ा आया तू, और तेरी भैन है कहती होगी मैं नहीं करती। खामोश रहना सीखे और खुदा के घर में आए। आज से आधा घंटा पहले आना शुरू करें और आधा घंटा पहले आके खुदा से खामोशी से पूछे कि खुदा तू मेरी जिंदगी में क्या मकसद रखता है। स्टिलनेस ठहर जाए। मैंने आपको एक बॉल की मिसाल सुनाई थी। 10 फ्रिज नवे लोग कोला एक होए 5-5 मिनट बाद कोले फ्रिजा च बदलते जाओ नहीं बनेगी। और फ्रिजा का कोई कसूर नहीं, कोले का कसूर है। एक टुटी भजी फ्रिज होएगी 24 घंटे कोला नहीं हिलाओगे, उन्हें मार मार के कटोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जगह अपना ठहर जाए। स्टिलनेस। पहला सैमुअल 12:16 में देखें क्या लिखा है। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदा तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। हालेलुया। जो आज 2024 में आप मांग रहे हैं ना, ठहर जाएं। शिलोह गॉस्पेल चर्च के अंदर ठहर जाएं। भाग्य माते इधर मंगल मीटिंग, बुद्ध मीटिंग, जुमेरात मीटिंग, ठहर जाएं। यीशु एक ही है। आप सारी जगह फिरेंगे और आखिर में कहेंगे मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। एक दूसरे को कहें आप ठहरे रहो, ठहरे रहो और खामोशी के साथ। और बात कर पता है हॉल, शादी हॉल में कलाम सुनाना बड़ा मुश्किल होता है। जब निकाह वगैरह होते हैं ना, वहाँ बार बार कह रहे हो भाई चुप करो, कॉल सुनो। मुझे पता है पिछले दिन मैंने निकाह किया है हॉल में, लोग चुप ही नहीं कर रहे थे। बड़ा मुश्किल होता है वहाँ कलाम, क्योंकि लोग बात ही नहीं सुनते। होता है ना ऐसे। तो जब आप ठहर जाएंगे, दुनियादारी की बातों से हटेंगे, खुदा विस्परिंग आपके साथ करता है। कभी खामोशी में खुदा की आवाज को सुने, खुदा डायरेक्टली आपसे बात करेगा। लेकिन दुनियादारी की आवाजों में आप उसकी आवाज को नहीं पहचानेंगे। इस तरह बैठे घर में खुदा के और सुकून से। संडे चर्च एक जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वक्त आप गुजारा करें। ना कोई इबादत हो, कोई बात नहीं, अकेले आ जाए, अकेले खुदा के घर में कुछ वक्त गुजार के जाए। यूनुस भाई लोग अक्सर आते हैं, मैं नहीं होता, लेकिन चर्च 24 घंटे खुला होता है। क्यों जी? कभी कहा है किसने चर्च नहीं खुले? चर्च खुला होता है। अकेले आए कुछ वक्त, खुदा से मुलाकात करें। खुदा आपको देखना चाहता है कि आपके लिए मेरे दिल में कोई है, अकेले आप मुझे वक्त दे सकते हैं। सोचिए इस बात को और फिर ठहरे वहां पे। ज़बूर 46 में लिखा है खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं, मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद दूंगा। हालेलुया। वो आपको भी सर बुलंद कर देगा। और पहला सूरा 3:19-11 में जब एलिया ने उसकी आवाज सुनी, उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावन के हुजूर खड़ा हो। वो खड़ा हो गया। देखो खुदावन गुजरा और एक बड़ी तंद आंधी ने खुदावन के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। और खुदावन आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावन जलजला में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई और खुदावन आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी सी आवाज आई, एलिया तू कहां है? आप दुनियादारी से निकलकर, आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं खुदा को, अब दुनियादारी से निकलकर खुदा के हुजूर के, खुदा की दबी सी आवाज आपकी जिंदगी। उसने पतरस से कहा पतरस आ। और पतरस मुश्किलात वाले, डुबोने वाले पानी पर चलना शुरू। हालेलुया। आप कभी साइलेंस और स्टिलनेस में भी वक्त गुजारे। सैमुअल अहद के संदूक के पास लेटा हुआ था। रात के टाइम खामोशी में खुदा ने विस्पर किया, सैमुअल उठा, भागा एलिया के पास और उसके पास, एली के पास। फिर आवाज आई, फिर भागा, फिर आवाज आई, कहता तूने भी चढ़, कहते नहीं। फिर विस्पर सुनी, खुदा को पहचान, कहता मैं हाजिर। आप भी खुदा के साथ विस्परिंग करें, विस्पर करें खुदा। और फिर तीसरी और चौथा लफ्ज क्या है? क्या है? ऊंची सारी बोलो। टी का मतलब क्या है? ट्रस्ट इन हिम। क्या है? यानी खुदा पर भरोसा करना शुरू करें, उस पर भरोसा करें। लोग वो खुश और आराम में रहते हैं, वो लोग खुश और आराम में कहते हैं
जो खुदावंद में खुश रहते हैं, रिजॉइस करते हैं, वो आराम में रहते हैं जो अपने आप को आजमाते हैं, वो आराम में रहते हैं जो साइलेंस और स्टिल होते हैं। लोग वो खुश रहते हैं जो दुनिया की आवाज़ों को छोड़कर खामोशी से खुदा की आवाज़ पर ध्यान रहते हैं। वो लोग जो खुदा में ठहर जाते हैं, वो लोग जो उस पर भरोसा रखते हैं। ये 4 चीजें आप अपनी जिंदगी में अपना लें। 2024 के 11 महीने का आपकी जिंदगी के तमाम 10 साल खुदावंद के आराम में। हालेलुया। ट्रस्ट ऑन हिम। हमें क्यों उस पर भरोसा करना है? हमें इसलिए भरोसा करना है कि अगर उसके हाथ में सिर्फ हमारे थोड़े से रिसोर्सेज 5 रोटी और 2 मछलियां आएंगी, वो हमें 5,000 पब्लिक की तरह ले जाने की कुदरत रखता है। हमें उस पर इसलिए भरोसा करना है कि वो दुनिया की आखिर तक हमारे साथ है। हमें इसलिए भरोसा करना है कि 12 वर्ष से बीमारी अगर हमारे अंदर होगी तो हम उसकी पोशाक को छू लेंगे तो आराम पाएंगे। हमें इसलिए भरोसा करना है कि 30 वर्ष के बीमार को उसने कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हमें इसलिए भरोसा करना है कि नाइन शहर की बेवा पर उसको तरस आया, उसने बेवे के बेटे को मरे हुए को जिंदा कर दिया। वो खुदा आज मेरे और आपके साथ है। इसलिए हमें उस पर भरोसा करना है जो घोड़ियों को बाग करता है। वो खुदा हमारे साथ है। और यशायाह आखिरी बात करूंगा, यशायाह 26 में लिखा है जिसका दिल कायम है वो उसे सलामत रखेगा। बोले मेरा दिल कायम है। बोले आज का मैसेज मेरे लिए, जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा क्योंकि इसका तवक्कुल तुझ पर है। खुदा आज के कलाम के सिरे से आपको बहुत बरकत है।